ناظرین آداب، پروگرام دعا اور دوا میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ عرفان۔ ناظرین، کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی یا دشواری ہو جس کا حل آپ قرآن و حدیث یا سلف صالحین سے منقول دعاؤں کے ذریعے چاہتے ہوں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ ہمارے نمبر آپ کی ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں۔ آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی مصباح الدین نقشبندی صاحب۔ مفتی صاحب السلام علیکم، بہت بہت خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، دعائیہ کلمات کے ساتھ باقاعدہ طور پر پروگرام کا آغاز کرنا چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلى من احبهم وتبعهم باحسان اجمعین الى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، صدق الله العظيم۔ اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔ اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير يا ذا الجلال والإكرام۔ چلیے پروگرام کے پہلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ گجرات سے بول رہے ہیں۔ جی سوال کیجیے۔ ہماری بھتیجی ہے، جی 3 مہینے کی ہے ہماری بھتیجی۔ مغرب کے ٹائم بہت روتی، ضد کرتی ہے۔ جی ہاں 5 سال بعد قریب یہ جا کے ہم کو، یعنی ہم کو خوشی یہ ملی وغیرہ کا نام ہے، بس یہی ہے کہ مغرب کے ٹائم روتی بہت ہے یہ، اس لیے کوئی وظیفہ ہو تو مولانا بتا دیں۔ ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کی تلاوت کیجئے۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، 11 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کو بھی پڑھیے اور آپ کی بھتیجی پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ تعالی اس کی ضد ختم ہو جائے گی۔ جی، اور مغرب کے وقت کافی روتی ہے بچی۔ جی، تو جس وقت مغرب کے وقت رو رہی ہے تو مغرب کے وقت ہی آپ اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر ان پر دم کر دیجئے، جیسا کہ ہم نے طریقہ بتلایا ہے کہ 11 مرتبہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف بھی پڑھنی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہاں میں احمدآباد سے بات کر رہی ہوں۔ جی سوال کیجیے۔ میرا لڑکا ہے نا، بات نہیں کرتا ہے، مجھے کچھ میں پڑھتی ہوں اور تھوڑا سا فرق پڑتا ہے کبھی، اور بس پھر اس کے بعد ایسا ہو جائے کہ بس بات کرے میرے سے۔ جی پڑھنے کا بتا دو۔ ٹھیک ہے، آپ کو جو عمل بتایا گیا ہے وہ کنٹینیو جاری ہے؟ ہاں کنٹینیو کر رہی ہیں اس کو؟ یا وضو سے یہ جامع۔ جی ٹھیک ہے، جواب دیا جائے گا۔ اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں گریٹر نوئیڈا سے لتا بول رہی۔ جی سوال کیجیے۔ میں 5-6 سال سے بہت پریشان ہوں، میں دوا گولی لگ رہی نہیں ہے، دعا کروانا تھا۔ جی جی، کس طرح کی پریشانی ہے؟ ایسے کبھی بخار ہوتی ہے، کبھی پیٹ میں آپریشن پتھری کا کروایا تھا میں نے، کبھی کچھ نہ کچھ لگا رہتا ہے۔ جی جی جی، تو پیٹ میں درد رہتا ہے؟ ہاں جی، پیٹ میں، پورے شریر میں۔ اچھا، پورے جسم میں درد رہتا ہے؟ ہاں جی، اب 5-6 سال سے میں بہت پریشان ہوں۔ لتا آپ نے نام بتایا اپنا نا؟
हाँ जी। जी 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 ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, पहला जो सवाल था वो लड़के के ताल्लुक़ से था और आपने कई बार वजीफ़ा बताया है, वो उन पर अमल कर रही हैं और आगे कुछ कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहन, आप अपने ख़ानदान के बड़े ज़िम्मेदार सरपरस्त हजरात को बिठाइए, उनके साथ लड़के को भी बिठाइए और उनसे कहिए कि वो लड़के को समझाएं, वो माँ से बात नहीं कर रहा है। अगर आपके फ़र्जंद इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो हम इस प्रोग्राम के ज़रिए से उनको समझाएंगे कि भाई आपका जो माँ के साथ क़त्अ ताल्लुक़ है ये बहुत बड़ी गलत बात है। शरीयत इस्लामिया के अंदर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। माँ से गुफ्तगू कीजिए, वालिद की भी खिदमत कीजिए, इन दोनों की खिदमत कीजिए, इनसे गुफ्तगू कीजिए। अभी आपको इनकी कदर मालूम नहीं हो रही है। जिनके माँ बाप नहीं हैं उनसे पूछिए कि माँ बाप की कदर क्या होती है, उनकी अहमियत क्या होती है। माँ बाप अल्लाह ताला की ऐसी अजीम नेमतें हैं कि एक मरतबा ये नेमतें चली जाएं तो दोबारा वापस आने वाली नहीं हैं। तो आपका अपनी माँ से गुफ्तगू न करना ये आपके लिए नुकसान का बाइस होगा और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ख़िलाफ़ होगा। आप अपनी माँ से गुफ्तगू कीजिए, बात कीजिए। और बहन, आपसे हम कहना चाहेंगे कि आप अपनी मज़ीद दुआओं में इस दुआ को भी शामिल फरमा लीजिए। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अअयुन, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अअयुन। इस दुआ को आप 7 मरतबा पढ़िए और अव्वल आखिर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाह ताला इस दुआ की बरकत से आपके लड़के को तौफीक अता फरमाएगा। जी, और एक कॉलर हैं ग्रेटर नोएडा से लता। इनका सवाल ये है कि 5 सालों से इनके पूरे जिस्म में दर्द रहता है और ये काफ़ी परेशान है। जी 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 ठीक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दरबार में आप भी रुजू होइए। हम अल्लाह ताला के दरबार में ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको इस्लाम की तौफीक अता फरमाए। बहन, आप इस्लाम की सआदत से मालामाल हो जाइए, मुशर्रफ व इस्लाम हो जाइए। आप मुशर्रफ व इस्लाम हो जाएंगी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ रुजू और मुतवज्जह हो जाएंगी तो अल्लाह ताला अपने फضل करम से आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाएगा। चलिए अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं करीमनगर से बात कर रहा हूँ। करीमनगर से। जी, क्या नाम हुआ आपका? मुफ्ती साहब को सलाम बोलिए हमारा तरफ से। जी, तो मेरे 3 सवाल है। जी, मेरा पहला सवाल ये है कि मैं रोजी का मसला है, मैं 2 बार बाहर जाके आया, बहुत परेशान हूँ। मैं काम में दिल नहीं लगता, क्या भी नहीं मेरे को, बहुत परेशान हूँ रोजी के लिए। दूसरा सवाल ये है कि मेरे घर में खैर बरकत नहीं है और एक जमीन के ताल्लुक से हमारे माँ बाप वो जमीन बेचने का है, वो जगह नहीं बिके जा रही। रेट आया फिर जगह वापस ले गए, उसके ताल्लुक से कुछ जमीन बेचना, बल्कि उसके लिए एक वजीफा बताइए। तीसरा सवाल ये है कि माँ बाप को शुगर है और घर में थोड़ा परेशानी बहुत हो रही है और नमाजें की तो पाबंदी होती, लेकिन रोजी का मसला है। वो खानदानों में काम पर भी गए तो हम कुछ उड़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तुम लोग कुछ काम के नहीं करके नहीं, ऐसा हुआ बल्कि हमारे बात बता रहे, लेकिन ये तकलीफ महसूस मालूम हो रही है। उस मुफ्ती साहब को ऐसा बताइए कि इसके रास्ते खोल दे, अल्लाह ताला काम में खैर बरकत करे। ठीक है, इंशाल्लाह सवालों का जवाब दिया जाएगा। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई, जो आपका पहला मसला है कि रोज़ी के सिलसिले में आप परेशान हैं, अल्लाह ताला के दरबार में रुजू हो जाइए और कुरान मजीद की इस आयत मुबारका को आप पढ़ते रहिए बतौर वजीफ़ा। 11 मरतबा इस आयत को पढ़िए, अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ को भी शामिल कर लीजिए। अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यरज़ुक़ु मन यशा, अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यरज़ुक़ु मन यशा। दूसरा जो मसला था कि ज़मीन फ़रोख्त नहीं हो रही है, तो इस सिलसिले में आप इस वजीफ़े को 21 मरतबा पढ़िए। या काफ़ियल मुहिम्माति बिल खैर, या काफ़ियल मुहिम्माति बिल खैर। इस वजीफ़े को 21 मरतबा पढ़ेंगे और अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। जो तीसरा आपका मसला है कि आपके वालिदैन को शुगर है, इस सिलसिले में आप दरियाफ़्त करना चाहते हैं तो कुरान मजीद की
اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کے لیے ان سے کہیے، انشاءاللہ اس کی برکت سے ان کی شوگر نارمل رہے گی۔ وَهَذَا مِلْحٌ اُجَاج، وَهَذَا مِلْحٌ اُجَاج، وہ کوئی بھی چیز کھائیں یا کسی بھی چیز کو پینا چاہیں تو اس کو کھانے اور پینے سے قبل وہ 7 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر اس پر دم کر لے اور کھا لے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کی حفاظت فرمائے گا، شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ اور جو گھر میں خیر و برکت کے سلسلے میں آپ پوچھ رہے ہیں، آپ نے ذکر کیا کہ نمازوں کی تو پابندی کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ روزانہ عصر کی نماز کے بعد 111 مرتبہ گھر میں درود شریف کا اہتمام کیجئے، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اذن یکفی ہمک وَيَغْفِرُ لَكَ ذَنبَكَ، درود شریف پڑھنے کی برکت یہ ہے کہ وہ تمام پریشانیوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ درود کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی پریشانی کو دور فرمائے گا اور گناہ بھی بخش دیے جائیں گے۔ تو روزانہ 111 مرتبہ گھر میں درود شریف پڑھنے کا اہتمام کیجئے، سب افراد کو جمع کر لیجئے، اجتماعی طور پر سب مل کر پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا۔ اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ مراد آباد سے رضیہ۔ جی، سوال کیجیے۔ ٹی وی کی آواز بند کر دیں اور سوال کریں۔ جی مجھے یہ پوچھنا ہے جی کہ اگر کسی کا دنیا میں کوئی نہیں ہے تو وہ اپنا تیجا اپنا، ٹی وی کی آواز تو بند ہے، میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں اگر کسی کا دنیا میں کوئی نہیں ہے تو وہ اپنا تیجا تبارک خود کر سکتا ہے؟ چلیے جواب دیا مرنے جائے سے پہلے، مرنے سے پہلے زندگی میں اپنی۔ ٹھیک ہے، جواب دیا جائے گا۔ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب۔ جی عمران صاحب، یہ کیا پوچھ رہے تھے؟ ان کی آواز صاف سنائی نہیں دی ہمارے پاس۔ جی، ان کا سوال یہ تھا کہ کیا اگر انسان کا کوئی نہیں ہے معاف کیجیے گا، کوئی رشتہ دار نہیں ہے تو کیا موت سے پہلے وہ اپنا تیجا کر سکتا ہے؟ کیا کر سکتا ہے موت سے پہلے؟ وہ ایک رسم ہوتی ہے تیجا، مرنے کے 3 دن کے بعد جی جی وہ چنا وغیرہ پر کچھ کلمہ وغیرہ پڑھا جاتا ہے۔ جی جی، تو اس کے اندر ہوتا کیا ہے تیجا رسم کے اندر؟ چلیے اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں، یہ سوال بہت زیادہ واضح نہیں ہو پایا ہے۔ السلام علیکم۔ جی جی السلام علیکم۔ السلام جی، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ آگرہ سے بول رہا تھا ریحان۔ آگرہ سے ریحان۔ جی ریحان صاحب سوال کیجیے۔ میرا 7 سال کا لڑکا ہے، وہ دن پہ دن کمزور ہوئے چلے آ رہا ہے، بہت زیادہ کہنا نہیں مانتا ہے کسی کا بھی۔ 7 سال 7 سال کا لڑکا جی، ہے، ٹھیک۔ کہنا نہیں مانتا ہے، بہت کمزور ہو گیا۔ ٹھیک ہے، جواب دیا جائے گا۔ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب۔ دوسرا سوال، اچھا آپ کا ایک اور سوال ہے؟ جی ایک اور سوال ہے۔ جی سوال کیجیے۔ چلیے جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 سالہ آپ کا لڑکا ہے اور وہ دن بدن کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، تو بھائی آپ اپنے لڑکے سے کہیے کہ وہ تو پڑھ سکتا ہے، ان سے کہیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس نام کا ورد 121 مرتبہ صبح شام میں اپنی سہولت سے کرتا رہے۔ یا قوی یا قوی یا قوی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نام ہے، 121 مرتبہ اس کا ورد کرنے کے لیے کہیے، اور شروع میں آخر میں 11 مرتبہ درود شریف بھی پڑھنے کے لیے اس کو بتلائیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جسم میں طاقت اور توانائی عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ۔
अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेंगलुरु से बोल रहे हैं। जी जी, सवाल कीजिए। हेलो जी जी, सवाल कीजिए। हम बुरी नजर के लिए कौन सी दुआ पढ़ना है? बुरी नजर लग जाती है ना जी जी। अपने पर जब, और कान में दर्द के लिए, और है ना मेरे नाक पे काला दाग आते रहता है फिर चले जाता है, उसके लिए कौन सी दुआ पढ़ना है? दाग आते रहता है। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहन, आपका जो पहला मसला है बुरी नज़र से हिफाजत के लिए, तो इस सिलसिले में हदीस शरीफ में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ बतलाई है। इस दुआ को पढ़ें। बिस्मिल्लाहि अर्क़ीका मिन कुल्लि शैइन युज़ीका मिन कुल्लि ऐनिन हासिदिन वल्लाहु यशफ़ीक। इस दुआ को पढ़ें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बुरी नज़र से हिफाजत फरमाएगा। जो दूसरा मसला था कि कान में दर्द होता है, तो जहाँ पर भी कान में आपको दर्द है वहाँ पर आप अपने सीधे हाथ को फेरते हुए इस दुआ को जो अभी हम बतला रहे हैं 7 मरतबा पढ़ें, और शुरू में आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। अऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व क़ुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु। अऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व क़ुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु। चलिए अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, क्या नाम है आपका? मेरा एक सवाल है, मेरा घर बिकने रखा हूँ, अभी नफा सेल नहीं हो रहा है, एडवांस दिया है। आपकी आवाज़ रिपीट हो रही है, आप पहले टीवी की आवाज़ बंद कर दें। टीवी की आवाज़ बंद करें सर, मैं बात कर रहा हूँ। जी। मेरा घर बिकने रखा है, वो नहीं बिका हुआ है, एडवांस दिया हुआ है, अब गिरा हुआ है, 1 महीना हो गया है, बता रहा है। घर फरोख्त नहीं हो पा रहा है, बिक नहीं पा रहा है। हाँ। 1 महीना हो गया है। ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई, आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दरबार में रुजू हो जाइए, और जो भी आपका मसला है घर फ़रोख्त नहीं हो रहा है, इस सिलसिले में खालिक़ कायनात के दरबार में आप अर्ज़ कीजिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने फ़ज़ल करम से आपकी परेशानी और मुसीबत को दूर फरमाएगा। और साथ ही साथ अभी हम जो वजीफ़ा आपको बतला रहे हैं, इस वजीफ़े को 121 मरतबा आप पढ़ें। 121 मरतबा पढ़ें, और अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ भी पढ़ें। या काफ़ियल मुहिम्माति बिल खैर, या काफ़ियल मुहिम्माति बिल खैर। इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे मौलाना साहब से ये पूछना है, बाल झड़ रहे और बाल नहीं बहुत झड़ रहे हैं सिर के, और मतलब छोटे हो गए पूरा लंबे और झड़े ना हो, उसके लिए कोई दुआ बता दे मौलाना साहब। जी, कब से है ये शिकायत? चलिए, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, बाल झड़ने की शिकायत है। जी, आपको बाल झड़ने की शिकायत है, तो इस सिलसिले में हम सूरह फातिर जो कि 22वें पारे में है, उसकी आयत मुबारका पढ़ने के लिए कहेंगे। आप इस आयत मुबारका को रोज़ाना 11-11 मरतबा पढ़ते रहिए। सुबह फजर की फ़र्ज़ नमाज और सुन्नत के दरमियान 11 मरतबा पढ़ें, और मगरिब की नमाज के बाद 11 मरतबा पढ़ें। और इस दुआ को पढ़ने से पहले जो कुरान मजीद की आयत है, आपको अव्वल आखिर 7-7 मरतबा दुरूद शरीफ भी पढ़ना होगा। वो आयत मुबारका ये है, इन्नल्लाह युमसिकुस समावाति वल अर्ज़ अन तज़ूला, इन्नल्लाह युमसिकुस समावाति वल अर्ज़ अन तज़ूला। आप इसको पढ़िए, इंशाअल्लाह ताला बालों का झड़ना ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन सा आप बात कर रहे हैं? मैं सिटी बैग से अयूब खान बात कर रहा हूँ। जी, अयूब साहब सवाल कीजिए। एक सवाल क्या हुआ, तो हमारे वालदा पूरा बीमार हो गए, उनके होश में नहीं है, तो उनको लिए दुआ क्या पढ़ना चाहिए? और दूसरा सवाल क्या है, जनाजा जब चले आता ना, तो अपन कुरान शरीफ वो ये पढ़ सकते क्या ईसा सलाम के लिए? जनाजा चला जाता मतलब तो खबरस्तान में ले जाते ना, तो कुरान शरीफ वो पढ़ सकते क्या? पूछा।
घर पर कुरान पढ़ सकते हैं, ये सवाल है आपका? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। जी ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, इनकी पहला मसला है कि इनकी वालिदा बहुत बीमार हैं। जी जी, तो भाई आप कुरान मजीद की इस आयत मुबारका को पढ़िए और पढ़कर उन पर दम कीजिए। अगर वो ख़ुद इस आयत मुबारका को पढ़ सकती हैं तो आप उनको पढ़ने के लिए बतलाइए। वइज़ा मरीज़तु फ़हुव यशफ़ीन, वइज़ा मरीज़तु फ़हुव यशफ़ीन, इस आयत मुबारका को सुबह फजर की नमाज के बाद और रात में मगरिब की नमाज के बाद 21 मरतबा पढ़नी है और अव्वल आखिर 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। वइज़ा मरीज़तु फ़हुव यशफ़ीन। जो दूसरा मसला आपने दरियाफ़्त किया कि घर से जब जनाजा ले जाया जाए तो घर से जनाजा जाने के बाद जो भी अफराद घर में मौजूद हों, ख़वातीन वगैरह होंगी, क्योंकि मर्द हज़रात तो तदफीन के लिए और नमाज जनाजा अदा करने के लिए मस्जिद जाएंगे, फिर कब्रिस्तान जाएंगे तदफीन के लिए, तो घर में जो ख़वातीन मौजूद हैं अगर वो कुरान मजीद की तिलावत करना चाहती हैं और तिलावत करके मरहूमा को उसका सवाब या मरहूम को उसका सवाब ईसाल करना चाहती हैं तो इसकी शरीयत मुतहरा में इजाज़त है, वो तिलावत कुरान का अहतमाम कर सकती हैं। अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहबा कहाँ से बात कर रही हैं? आपको हमारी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है, आप सवाल कीजिए। हाँ जी सर, मुझे 2 जनरली क्वेश्चन पूछने, प्लीज बता दीजिए। जी हाँ जी सर, मुझे जैसे कि हम किसी दुकान के पास एक जाते हैं कि भैया हमें ये वाला सामान दे दो, लेकिन बस हमारा मन बदल गया 1-2 दिन बाद कि अब हमें ये नहीं चाहिए, दूसरी चीज चाहिए। ऐसे ही हम अल्लाह से दुआ करते हैं, मान लिया नौकरी के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ये वाली मनपसंद नौकरी दे दीजिए, और फिर 1-2 साल बाद हमारा मन बदल गया कि वो नहीं चाहिए, दूसरी चीज चाहिए। तो अल्लाह मियाँ इसके लिए कुछ बोलेंगे कि अभी तो तू ये मांग रहा था, फिर तुझे ये चाहिए। तो और एक ये बता दीजिए कि मौलाना साहब ने बता दिया कि दौलत के लिए 11 बार दुआए कुनूत बोली थी, तो ये सही है क्या? ठीक है ना, समझ गए ना आप? दूसरा सवाल क्या था आपका? जी मुफ्ती साहब, इनका पहला सवाल जो था वो काफ़ी तवील था और पेचीदा था, बड़ा तफसीली सवाल मालूम होता है। जी जी इनकी आवाज़ साफ सुनाई भी नहीं दी, आप फरमाइए क्या सवाल कर रही थी? जी, इनका सवाल ये था कि अगर किसी चीज़ की ख्वाहिश हो और फिर दूसरे दिन किसी दूसरी चीज़ की ख्वाहिश हो, तो इस तरीके से अगर ख्वाहिशात बार बार बदलते रहते हैं तो उससे क्या अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं, या फिर क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से इस तरह की चीज़ें पैदा होती हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहन, सबसे पहले आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दरबार में जिस चीज़ के बारे में भी सवाल करें उससे कबल ये इस बात का जान लेना ज़रूरी हो जाता है कि वो चीज़ जायज़ और दुरुस्त है या नहीं है। शरीयत इस्लामिया में जिस चीज़ का मांगना और जो चीज़ करना जायज़ होगा, आप उसी के मुताल्लिक़ अल्लाह ताला के दरबार में दुआ कर सकती हैं। तो जब भी आप अल्लाह ताला के दरबार में किसी भी अपनी ख्वाहिश और तमन्ना के सिलसिले में दुआ करें तो साथ ये भी अर्ज़ करें, ऐ अल्लाह मैं तो ये मांग रही हूँ, अगर दीन दुनिया और आखिरत के एतबार से ये चीज़ मेरे हक़ में बेहतर है तो तू मुझे ये चीज़ अता फरमा। अगर ये चीज़ मेरे हक़ में दीन दुनिया आखिरत के एतबार से बेहतर नहीं है तो इसकी तरफ से मेरे दिल को फेर दे, और जो चीज़ मेरे हक़ में दीन दुनिया और आखिरत के एतबार से बेहतर होगी वो अता फरमा। इस तरीक़े से आप दुआ करेंगी तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल भी फरमाएगा। और आप जब भी दुआ करें तो शुरू में और आखिर में दुरूद शरीफ भी पढ़ लें। हमने ये तरीक़ा आपके सामने अर्ज़ किया है दुआ करने के सिलसिले में। बिल्कुल। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का ये सिलसिला जारी रहेगा। मुफ्ती मिसबाहुद्दीन नक्शबंदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम दुआ और दवा में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि जब आप कॉल करें तो अपनी टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दें, सवाल को मुख्तसर और वाज़ेह रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉल ली जा सके। चलिए कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ वालेकुम सलाम। हेलो। जी जी, मैं पूना से बोल रहा हूँ। जी जी।
मेरे दो परेशानियां हैं। जी। एक तो मुझे शुगर है और दूसरा जो मेरे दोनों तलवों है वो तलवों में अंगार बर्निंग होती है 24 आवर्स, उससे नींद भी नहीं आती। तो ये तलवे दोनों में बातें जलन होती है? जी जी, तलवे में बहुत जलन 24 आवर्स होती है। ठीक है, जवाब दिया जाएगा आपको। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। जी, ये क्या दरियाफ्त कर रहे थे? पहला सवाल इनका हम शुगर के नहीं सुन ताल्लुक से सके था। इनके सवाल को। जी, इन्हें शुगर है इन्हें। जी जी जी। और दूसरा सवाल? दूसरा सवाल, इनके तलवे में जलन रहती है। जी ठीक है, अर्ज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई, जो आपका पहला सवाल है शुगर के हवाले से, तो हम आपको कुरान मजीद की आयत मुबारका बतलाएंगे। जब भी आप किसी चीज़ को खाएं या कोई भी चीज़ नोश करें, तो खाने और किसी भी चीज़ को नोश करने से क़ब्ल आप इस आयत मुबारका को 7 मरतबा पढ़कर उस चीज़ पर दम कर दीजिए, तो उसके अंदर आपके हक़ में जो ज़रर वाली शय है अल्लाह ताला उसको दूर फरमाएगा और शुगर भी आपका कंट्रोल में रहेगा। वहादा मिल्हुन उजाज, वहादा मिल्हुन उजाज। जो दूसरा आपका मसला है कि आपके तलवों में जलन रहती है और इस सिलसिले में आपको रात में नींद भी सही तौर पर नहीं आती, तो आप इस वजीफ़े को पढ़िए जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नामों में से एक नाम है। अल्लाह या लतीफ़ु या सलाम, या लतीफ़ु या सलाम। आप इसको 11 मरतबा पढ़िए और शुरू में आखिर में 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए। इंशाअल्लाह ताला उस जलन दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज़ बहुत धीमी आ रही है। हाँ सर, मेरा सवाल ये है जी, ये अभी एक लेडीज ने कॉल करी थी मौलाना साहब से, ये मतलब मरने से पहले अपना टीका पढ़ लें, तो मौलाना साहब को ये मतलब ये पूछना चाह रही है कि मौलाना साहब को ये मालूम नहीं है कि टीका क्या होता है। एक मरने के बाद दूसरे दिन होता है रस्म टीका। नहीं, तीजा का क्या हुक्म है शरीयत में, इस ताल्लुक से आप सवाल पूछ रही हैं? जी जी हाँ, मैं शरीयत के सवाल से पूछ रही हूँ। ये मतलब कि मतलब टीका जायज़ है या नहीं, ये मतलब मौलाना साहब कह रहे हैं टीका क्या होता है, ये सवाल पूछना है मुझे मौलाना साहब से बस। जी बिल्कुल, आपका जो सवाल है वो मसलकी तौर पर है, इस वजह से इसका जवाब नहीं दिया जा सकता है। जो मसलकी इख्तलाफात हैं या इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो इस प्रोग्राम में उस पर बातचीत नहीं होती है, उसका जवाब नहीं दिया जाता है। चलिए अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? बिहार से। जी, जिला पूर्णिया। पूर्णिया से, ठीक है, सवाल कीजिए। सवाल ये कि एक बच्ची है, उसके नाक और कान से ब्लड निकल जाता है। बच्ची की उम्र क्या है? 12 साल। कब से है ये शिकायत? ये लगभग 2 साल से। और डॉक्टर को दिखाए तो डॉक्टर का कहना है कि अंदर कुछ हो सकता है कि जख्म है। ठीक है, जवाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह, ज़रूर फ़ायदा होगा। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, वालेकुम अस्सलाम। चलिए एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। साहब जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं बोनिया बाराबाद कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी, सवाल कीजिए। जी सवाल कीजिए। ये रात को नींद नहीं आती, सिर्फ सोचता हूँ और जब वुजू करता हूँ तो मुझे शक होता है नमाज पढ़ने के लिए कि नींद साफ नहीं हो। जी, कोई दुआ तजवीज़ करें और वजीफा बताएं। ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलिए एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से बात कर रही हैं? हम मध्य प्रदेश जिला उज्जैन बड़नागर से बात कर रहे हैं। जी, सवाल कीजिए।
मेरे 3 सवाल है। जी। वो जो ये वायरस चल रहा ना अभी, कोरोना वायरस, उसके कोरोना लिए वायरस, कोई जी। दुआ बताइए, उसके लिए कोई दुआ। और एक मेरी बहन है, उसके लड़की है, लड़का हो, उसके लिए कोई दुआ बताइए। और एक और है कि मेरी बहन से बहुत कर्जा, बहुत परेशान है, कि इसके लिए कोई दुआ बता दीजिए। औलाद नहीं है? औलाद है, लड़की है उसकी, लड़का हो, उसकी दुआ बता दीजिए। 5 लड़कियां हो चुकी है उसकी। ठीक है, जवाब दिया जाएगा। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी। पूर्णिया से कॉल थी कि बच्ची है, उम्र 12 साल है, नाक और कान से उसके ब्लड आता है, खून आता है। जी मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब, आवाज़ मिल पा रही है आपको? चलिए, मुफ्ती साहब से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। इस बीच कॉलर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ, गुजरात से बोल रहे हैं हम। गुजरात से, जी। हाँ, मुफ्ती साहब से मेरा ये सवाल है जी कि हम सूरह यासीन पढ़ते हैं, बराबर, और अपने पढ़ते हैं तो इसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बारगाह में किस तरह पेश करना है, वो जरा मुझे बताइए। यासीन पढ़कर, ठीक। हाँ, सूरह यासीन पढ़ते हैं, सरकार की बारगाह में पेश करना हो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, उसे किस तरह पेश करते हैं? ठीक जी। मुफ्ती साहब, पूर्णिया से सवाल था कि बच्ची की उम्र 12 साल है, नाक और कान से खून आता है। नाक और कान से बच्ची को खून आता है। जी जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सिलसिले में इस वजीफ़े को पढ़ें, या शाफियल अमराज़, या शाफियल अमराज़। इस वजीफ़े को 21 मरतबा पढ़ें और शुरू में आखिर में 7 मरतबा दुरूद शरीफ भी पढ़ें। या शाफियल अमराज़। अल्लाह ताला आपकी लड़की के कान और नाक में से जो खून आ रहा है उसको दूर फरमाएगा। जी। अगला सवाल कश्मीर से था कि इन्हें रात में नींद नहीं आती है और नमाज के वक्त इन्हें शक होता है नापाकी का, दिल में वसवसा आता है कि वो नापाक है। जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको रात में नींद नहीं आती है तो आप बावुज़ू होकर रात में आराम कीजिए। सोने से कबल तहारत से फारिग हो जाइए, वज़ू भी कर लीजिए, और जब आप बिस्तर पर आ जाएं आराम करने के लिए तो जो अहादीस से मुबारका में सोते वक्त की दुआ बतलाई गई है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूत व अहया, इस दुआ को पढ़कर कुरान मजीद की इस आयत मुबारका को पढ़ें। वजअलना नौमकुम सुबाता, वजअलना नौमकुम सुबाता। आप इस आयत मुबारका को 3 मरतबा पढ़िए, शुरू में आखिर में एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर सो जाइए। अल्लाह ताला आपको राहत वाली नींद अता फरमाएगा। तो दूसरा आपका मसला था कि आप जब नमाज अदा करते हैं तो आपको ये शक पैदा होता है कि मेरे कपड़े नापाक थे, तो आप नमाज के लिए खड़े होने से कबल अपने जिस्म की भी अच्छी तरह सफाई का अहतमाम करें और लिबास भी अच्छी तरह साफ़ और सुथरा पहने और उसके बाद नमाज अदा करें। और यूं ही आपको नमाज में शक आ रहा है, कपड़े भी पाक हैं, आपका जिस्म भी पाक है, तो आप अपने ख्याल को उस शक की तरफ न ले जाइए। आप कुरान मजीद में जो कुछ भी कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं या नमाज इमाम साहब की इक़्तिदा में पढ़ रहे हैं तो इमाम साहब की क़िराअत की तरफ अपने जहन को मुतवज्जे कीजिए। वो खुद ब खुद शक जो पैदा हो रहा है वो ख्याल दूर हो जाएगा। जी। अगला सवाल मध्य प्रदेश से था कि कोरोना वायरस जो आजकल फैल रहा है उसके लिए कोई दुआ बताइए।
اور دوسرا سوال تھا کہ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، قرض سے چھٹکارا پانے کے لیے کیا دعا ہے؟ اور تیسرا سوال ان کا یہ تھا کہ 5 لڑکیاں ہیں، لڑکے کے خواہش مند ہیں۔ جی اچھا ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 لڑکیاں ہیں، آپ لڑکے کے خواہش مند ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں رجوع ہوئیے اور اس دعا کو پڑھیے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ آپ خود بھی پڑھیے اور اپنی اہلیہ سے کہیے کہ وہ بھی قرآن مجید کی آیت مبارکہ کا حصہ ہے، اس کو پڑھتے رہیے۔ صبح فجر کی فرض نماز اور سنت کے درمیان اس کو پڑھیں 11 مرتبہ، اور رات میں مغرب کی نماز کے بعد اس کو پڑھیں 11 مرتبہ، اور فجر میں ہو یا مغرب میں ہو اول آخر 3 مرتبہ درود شریف بھی پڑھنا ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ جو دوسرا مسئلہ ہے کہ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس کے ادائیگی کے اسباب مہیا ہو جائے، تو آپ حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی مجرب اس دعا کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وبطاعتک عن معصیتک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ایک اور مرتبہ ہم پڑھ دیتے ہیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وبطاعتک عن معصیتک واغننی بفضلک عمن سواک۔ جو تیسرا آپ کا مسئلہ تھا کہ یہ کرونا جو وائرس ہے، اس سے حفاظت کے لیے کیا کریں، تو اس سے حفاظت کے لیے سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ بے حیائی کے کام اور گناہوں کے کاموں کو ترک کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی بے حیائی کے کاموں کی وجہ سے ایسی بیماریاں ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں جنم لیتی ہیں کہ ہم سے پہلے والے لوگوں نے کبھی اس کا نام تک نہیں سنا تھا۔ میں یہاں پر ایک حدیث مبارک سنا کر آپ کو اس کے مفہوم کو سمجھاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے حیائی سے بچو، کیونکہ جس قوم میں بے حیائی جنم لیتی ہے، فحاشی اور عریانیت وہاں عام ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ عذاب کے طور پر نئی نئی قسم کی بیماریاں وہاں پر پیدا فرماتا ہے، اور وہ بیماریاں جب پیدا ہوتی ہیں تو جس کی وجہ سے وہ لوگ نقصان اور خسارے میں پڑتے ہیں، تو سب سے پہلے بے حیائی، فحاشی اور عریانیت کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ اب پوری دنیا سے اس کا خاتمہ کرنا تو یہ آپ کے بس میں نہیں ہے، تو اپنے گھر کے حد تک، اپنے معاشرہ اور اپنی سوسائٹی کے حد تک، جہاں تک آپ بے حیائی کا خاتمہ کر سکتے ہیں، جتنی آپ کی استطاعت ہے اس لحاظ تک بے حیائی کو ختم کریں، اور حیا اور عفت، عزت کا ماحول بنائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں رجوع ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سورہ فاتحہ بتلائی ہے، سورہ فاتحہ کو صبح 7 مرتبہ اور شام 7 مرتبہ پڑھیں، اور شروع میں آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہ تعالیٰ یہ وائرس سے حفاظت فرمائے گا۔ بالکل انشاءاللہ۔ اور گجرات سے ایک سوال تھا کہ یاسین، سورہ یاسین پڑھنے کے بعد اللہ یا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کس طریقے سے پیش کیا جانا چاہیے؟ جی، سورہ یاسین کی آپ جس مقدار میں بھی تلاوت کرنا چاہیں تلاوت کریں۔ اب اس کے بعد جب اس کو ہدیہ کرنا چاہیں تو اس سے قبل اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کریں، اے اللہ جو بھی قرآن مجید سورہ یاسین کی جتنی بھی تعداد میں تلاوت ہوئی ہے اس کا ذکر کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں عرض کریں کہ اے اللہ قرآن مجید سورہ یاسین کی تلاوت کا اہتمام کیا گیا ہے، اس کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ قبولیت کے بعد اس کا ثواب اپنے پیارے بندے ہمارے آقا و مولا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہم ہدیہ کر رہے ہیں، اس کو بھی اپنے حبیب کے دربار میں ہماری طرف سے اس ہدیے کو قبول و منظور فرما، اس طریقے سے دعا کریں۔ اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ عبدالقیوم، جموں کشمیر سے۔ جی عبدالقیوم صاحب سوال کیجیے۔ میرے 2 سوال ہیں۔ ایک سوال ہے جو کولیسٹرول کو کام کرنے کے لیے کوئی دوا بتا دیجیے۔ کس چیز کو؟ کولیسٹرول خون کی چربی جو ہے، خون میں جو چربی بڑھ جاتی ہے، خون موٹا ہو جاتا ہے۔ اچھا کولیسٹرول، اس کے لیے کوئی دوا بتا دیجیے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جمعہ نماز کے بعد، جو جمعہ فرض کے بعد جو سنت ہم 4 رکعت پڑھتے ہیں، کیا وہ اسی باقی سنتوں کی طرح پڑھنا ہے، یا اس میں آخری 2 رکعت میں جو ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورہ نہیں ملانا ہے؟ باقی سنتوں کی طرح پڑھنا ہے،
یہ سوال ہے نا؟ باقی سنتوں کی طرف پڑھنا ہے یا ان کو کچھ الگ جو سورہ ملاتے ہیں نا ہم یہ سورہ فاتحہ کے ساتھ، ہاں اس میں کچھ کیا وہ کم کرنی ہے یا نہیں؟ ٹھیک جی شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی جو آپ نے سوال کیا پہلے اسی کا جواب ہم دے دیتے ہیں کہ جمعہ کی نماز، فرض نماز سے پہلے جو 4 رکعت سنت ادا کی جاتی ہے تو اس سنت کی پہلی دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد ضمی سورہ تو پڑھیں گے، لیکن بعد کی جو 2 رکعتیں ہیں، تیسری اور چوتھی رکعت، ان میں سورہ فاتحہ کے بعد کیا ضمی سورہ بھی پڑھنا ہے؟ تو دیکھیے بھائی، ہم آپ کو ایک قاعدہ بتلا دیتے ہیں. سنت میں تو آپ کو جمعہ سے پہلے کی سنت میں 4 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ضمی سورہ بھی پڑھنا ہے. ایک قاعدہ بھی آپ ذہن میں رکھیے، فقہ کا قاعدہ ہے کہ فرض نماز کے علاوہ جتنی سنتیں ہیں، چاہے وہ 2 رکعت ادا کرے یا 4 رکعت ادا کرے، تو سنت کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ضمی سورہ کی بھی تلاوت ہوگی، برخلاف فرض نماز کے. فرض نماز اگر 4 رکعت والی بھی آپ ادا کر رہے ہوں تو پہلے کی دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ضمی سورہ پڑھیں گے، بعد کی دونوں رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوگی، ضمی سورہ کی تلاوت نہیں ہوگی. جی جو آپ کا دوسرا مسئلہ تھا کہ کولیسٹرول کے سلسلے میں چکنائی وغیرہ جسم کے اندر بڑھ جاتی ہے تو اس سے حفاظت کے لیے کیا کریں؟ تو اس سے حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھیں. آیت الکرسی آپ صبح 3 مرتبہ پڑھیں اور شام میں 3 مرتبہ پڑھیں. صبح فجر کی نماز کے بعد اور شام میں مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں، اور اس سے پہلے اور بعد میں ایک مرتبہ درود شریف بھی پڑھ لیا کریں. جی انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کشمیر سے عبد الرحمان بول رہا ہوں. جی عبد الرحمان صاحب سوال کیجیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ تہجد نماز کے بعد مجرب عمل بتائیے، کوئی وظیفہ بتائیے جس میں قرب الہی حاصل ہو جائے. نمبر دوسرا سوال ہے، اگر مولوی صاحب مسجد میں نہیں آئے گا، کوئی دوسرا نماز پڑھنے کے لیے آئے گا آگے امام کی جگہ، تو اگر پھر تکبیر ہم نے پڑھا ہوگا تو مولوی صاحب آئے گا، تو مولوی صاحب اس وقت اپنی جگہ پر جائے گا یا وہی امام نماز پڑھائے گا؟ ٹھیک، یہ 2 سوال ہیں. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. جی فرمائیے، ان کا سوال کیا ہے؟ ان کا پہلا سوال تھا کہ تہجد کی جو نماز ہے اس کے بعد کچھ ایسی دعا بتائیے جس سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو. جی ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے حصول کے لیے کیا دعا کرنی چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ دعا کریں، اللہم انی اسألک حبک وحب حبیبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الیک. اللہم انی اسألک حبک وحب حبیبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الیک. آپ اس دعا کو پڑھیں، اللہ سبحانہ و تعالی فضل فرمائے گا. چلیے اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی، بال گرنے کے لیے کون سی دعا پڑھنا ہے؟ جی بال گرتے ہیں نا، ہیئر فالنگ کے لیے، جی جی اور دماغ تیز کرنے کے لیے انا علینا جمی وہ کتنے بار پڑھنا ہے؟ ٹھیک. اور بری نظر کے لیے یا نورو یا وسیع وہ کتنے بار پڑھنا ہے؟ بال گرنے کے لیے، بری نظر کے لیے، داغ کے لیے. ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آپ کا پہلا مسئلہ ہے کہ بال جھڑ رہے ہیں، اس سے حفاظت کے لیے کون سی دعا پڑھیں؟ تو قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کو 11 مرتبہ پڑھیں اور اس سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا.
इन अल्लाह युमसिकुस समावाति वल अर्द अन तज़ूला। जो दूसरा आपका मसला है कि हाफिज़े के लिए क्या पढ़ना चाहिए, तो इस सिलसिले में कुरान मजीद की ही इस आयत मुबारका को पढ़ें। इन्ना अलैना जमाअहु व कुरआनह, इन्ना अलैना जमाअहु व कुरआनह, इस आयत मुबारका को 21 मरतबा पढ़ें और अव्वल आखिर 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। जो तीसरा मसला था वो क्या पूछ रही थी? और तीसरा सवाल जी, दाग वगैरह है उसके चेहरे पर, चेहरे पर दाग हैं, तो चेहरे पर दाग हैं तो इस सिलसिले में कुरान मजीद की इस आयत मुबारका के इस हिस्से को पढ़िए। मुसल्लमतुल ला शियत फीहा, मुसल्लमतुल ला शियत फीहा, इस आयत मुबारका के हिस्से को भी 11 मरतबा पढ़ें और अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर हाथों पर फूके और चेहरे पर जहाँ पर भी दाग हो चेहरे पर या हाथ पर, वहाँ पर हाथ को फेर लें, हाथों पर दम करके चेहरे पर फेर लें या फिर जहाँ भी दाग है वहाँ पर फेर लें। चलिए अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी कश्मीर से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद अशरफ। जी अशरफ साहब सवाल कीजिए। जी मेरी बीवी 37 साल की है जी, और उसका वजन बहुत ज्यादा है। उसके लिए मुझे कोई दवा बताइए। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। जी, इनकी अहलिया का वजन ज़्यादा है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़न को कम करने के लिए तो चहल कदमी करें, घर के काम और दीगर ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो ख़ुद अंजाम दे, तो इसकी वजह से जिस्मानी हरकत होगी और जो चर्बी होगी वो गल जाएगी और ख़ुद ब खुद वज़न कम हो जाएगा। इस सिलसिले में हम आपको बतलाएंगे कि कुरान मजीद की तिलावत भी करती रहिए। कुरान मजीद की तिलावत की वजह से इंशाअल्लाह आपका वज़न कम हो जाएगा। उसकी मज़ीद तफसील अर्ज़ करने का मौका नहीं है, तो कुरान मजीद की तिलावत कीजिए। और ये तजर्बे की बात है कि जो कसरत के साथ कुरान मजीद की तिलावत करने वाले हैं उनको मोटापा नहीं आता, वो अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद रहते हैं। अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? जी हम तावेलिस बोल रहे हैं, हमको पूछना है हाफिज जी से। जी बिल्कुल, सवाल कीजिए। नापाकी में है कि उर्दू औरतें पढ़ सकती हैं और जो है मेहंदी लगा सकती हैं? नापाकी की हालत में? हाँ, वो मतलब मेहंदी लगा सकती हैं और उर्दू सीख सकती हैं या पढ़ सकती हैं? जी। और जो है कब्र पे जब किसी की मौत हो जाए तो कब्र पे क्या पढ़ना चाहिए जाकर 40 दिन तक क्या पढ़ना चाहिए? शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। ये क्या पूछ रही हैं, कब्र पर जाकर क्या पढ़ें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कब्र के पास किसी भी कब्र पर रिश्तेदार हों या वालिदैन हों, जब ज़ियारत के लिए जाएं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दरबार में ये दुआ करें, अल्लाहुम्मा नव्विर क़ब्रहू, अल्लाहुम्मा वस्सिअ क़ब्रहू, अल्लाहुम्मा जअल क़ब्रहू रौज़तम मिन रियादिल जन्नह, अल्लाहुम्मा रफ़अ दरजातिह, अल्लाहुम्मा रफ़अ दरजातिह। इन दुआओं को पढ़ें। बिल्कुल। और इनका पहला सवाल ये था कि नापाकी की सूरत में क्या उर्दू वगैरह पढ़ सकती हैं, सीख सकती हैं? जी, नापाकी की हालत में, ऐसी हालत में है कि नमाज आप नहीं पढ़ सकती, ऐसी सूरत में आप उर्दू की चीज़ें पढ़ सकती हैं। लेकिन जहाँ पर कुरान मजीद की आयात बगिनात लिखी हुई हों, कुरान मजीद की आयात लिखी हुई हों, उर्दू का कोई ऐसा मजमून है, तो फिर आप उन आयात को तसलसल के साथ नहीं पढ़ सकती। उन आयात के मुख्तलिफ हिस्से करके आप टुकड़ों में आप उनको पढ़ सकती हैं। बिल्कुल। और एक सवाल और ये भी था कि वजीफ़ा कोई कुरान मजीद की आयत पढ़ रही हैं तो फिर इसकी इजाज़त है। जी। और एक सवाल ये भी था कि क्या नापाकी की हालत में मेहंदी लगा सकती हैं?
جی آپ مہندی لگا سکتی ہیں، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بالکل. تو ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ مفتی مصباح الدین نقشبندی صاحب جو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے. پروگرام دعا اور دوا کا وقت اب ختم ہو چکا ہے. ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.